of chapter number 9, which is um, अभी तक हमने कर लिया था कि कैसे भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग कर वो वापस ये सभी ऋषिगण सब सब लोग वापस चले गए। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे युधिष्ठिर महाराज भी वापस वापस अपने हस्तिनापुर आ गए। और वापस आकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा अपने राज कार्य में नहीं लग गए। उन्होंने आके अम, धृतराष्ट्र और गांधारी को कंसोल किया। तो हमने फॉरगिवनेस की और कंपैशन की क्वालिटी देखी थी एक वैष्णव की, युधिष्ठिर महाराज ने जो एग्जिबिट कर रहे थे लास्ट वर्ष में। तो आज उसी की कंटिन्यूएशन है। और उसी की कंटिन्यूएशन में आगे हम देखेंगे कि अभी आज के और कौन से उन्होंने और कौन सी वैष्णव क्वालिटीज जो हैं वो एग्जिबिट कर रहे हैं। लेट्स सी। तो 1.9.49 पितृचानुम चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभु। After this, the great religious king Maharaj Yudhishthir executed the royal power in the kingdom strictly according to the codes of royal principles approved by his uncle and confirmed by Lord Krishna. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read? Yes, Prabhuji, Preeti is going to read. Yeah. Maharaj Yudhishthira was not a mere tax collector. He was always conscious of his duty as king, which is no less than a father or spiritual master. The king is to see the welfare of citizens from all ages of social, political, economical, and spiritual upliftment. The king must know that human life is meant for liberating the encaged soul from the bondage of material conditions. And therefore, his duty is to see that the citizens are properly looked after to retain this highest state of perfection. Maharaj Yudhishthira followed these principles strictly, as it will be seen from the next chapter. Not only did he follow the principles, but he also got approval from his old uncle, who was experienced in political affairs. And that was also confirmed by Lord Krishna, the speaker of philosophy of Bhagavad Gita. Maharaj Yudhishthira is an ideal monarch, and monarchy under a trained king like Maharaj Yudhishthira is far by the most superior form of government, superior to modern republics of government of the people, by the people, the mass of people. Especially in this age of Kali, all born Sudha, basically low-born, ill-trained, unfortunate, and badly associated. They themselves do not know the highest perfection or aim of life. Therefore, votes cast them actually have no value, and thus persons elected by such irresponsible votes cannot be responsible representatives like Maharaj Yudhishthira. Yeah. Thus, Thank you. Yeah. Read. Yeah. Keep on reading, Pritesh. thus, end of Bhagavad Gita supports of first canto.
ninth chapter of Srimad Bhagavatam, entitled The Passing Away of Bhishma Deva, in the presence of Lord Krishna. Yeah, Hare very nice. Hare Krishna. Thank you, Pritesh. All right. So, what we are saying here, पितृ चानुमतो राजा वासुदेव अनुमोदितः। तो पितृ, पितृ इसमें किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? धृतराष्ट्र को। पितृ च अनुमतो, अनुमति, किससे अनुमति लेके वो राजा बन रहे हैं? धृतराष्ट्र से। कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है स्टेटमेंट कि वो धृतराष्ट्र से अनुमति मांग रहे हैं कि क्या मैं राजा बन जाऊं, क्या मैं राज सिंहासन पे बैठ जाऊं? Isn't it heights? It is height of what do you say? Height of humility, isn't it? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ही फॉरगेव, फॉरगिवनेस, कंपैशन, एवरीथिंग वाज देयर, राइट? बट नाउ गेटिंग हिज अप्रूवल, गेटिंग हिज अनुमति इज द हाइट ऑफ ह्यूमिलिटी, इजंट इट? तो ये क्वालिटी वैष्णव, वैष्णव में ही हो सकती है। और युधिष्ठिर महाराज से बड़ा कोई वैष्णव नहीं, राइट? तो युधिष्ठिर महाराज आज अपनी ये वाली क्वालिटी एग्जिबिट कर रहे हैं। इट्स लाइक के मैं वर्ल्ड कप फाइनल मैच जीत गया हूँ, और उसके बाद मैं जो जो कैप्टन हारा है मैं उससे पूछने जा रहा हूँ कि भाई साहब मैं ये वर्ल्ड कप उठा लूँ, वर्ल्ड कप को हाथ लगा लूँ। ऐसा होता है क्या मटेरियल वर्ल्ड में? कभी भी नहीं होता। हम पूछते भी नहीं है जो हार जाता है हमसे, isn't it? यहाँ पर वो अपने पितृ, अपने धृतराष्ट्र की अनुमति ले रहे हैं। पितृ च अनुमतो। हाँ। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु, ज का मतलब क्या होता है? पैदा होना। तो अजात मीन्स जो पैदा ही नहीं हुआ। युधिष्ठिर महाराज का शत्रु पैदा ही नहीं हुआ। और दिस इज अगेन भागवतम में एल्सवेयर इट इज मेंशन्ड द सिक्स क्वालिटीज ऑफ अ साधु। तितिक्ष्वा कारुणिकाः, सुहृद सर्वदेहिनाम्, अजातशत्रव शान्ताः, साधु साधव भूषणा। ये साधु के आभूषण हैं। कौन कौन सी? ये छह क्वालिटीज। कौन कौन सी छह क्वालिटीज? तितिक्ष्वा कारुणिकाः। तितिक्ष्वा मीन्स टॉलरेंट। हाँ, टॉलरेंट। एंड कारुणिकाः इज कंपैशनेट, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, है ना? कंपैशनेट, कंपैशन। फिर सुहृद सर्वदेही नाम। सुहृद हमने देखा था ना, फ्रेंडशिप वाला जब हमने डिस्कस किया था। सुहृद इज द डियर मोस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड से भी ऊपर सुहृद। सर्वदेही नाम, सभी देही नाम, जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं उनका बेस्ट फ्रेंड। कोई हो सकता है क्या? एक बेस्ट फ्रेंड नहीं मिलता यहाँ पर। वो बोल रहे हैं कि सुहृद सर्वदेही नाम, सभी लोगों का बेस्ट फ्रेंड। फिर अजात शत्रु, अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ही ना पैदा हुआ हो। और शांत, पीसफुल, ऑलवेज शांत। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी, ऑफ अ साधु। साधु साधव भूषणा, ये उसके आभूषण हैं एक साधु के। तो इसमें युधिष्ठिर महाराज का ये आभूषण दिखा बताया जा रहा है कि वो अजात शत्रु थे। राइट। और उन्होंने अपने अंकल से, अपने धृतराष्ट्र से उन्होंने परमिशन लेके देन ही स्टार्टेड हिज डूइंग अकॉर्डिंग टू द धर्मा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपनी ड्यूटीज स्टार्ट करने लग गए अकॉर्डिंग टू द धर्म। राइट। ऐसा नहीं कि चलो मैं राजा बन गया हूँ तो लेट्स पार्टी। नो। जब ध्रुव महाराज जब ध्रुव महाराज को वैकुंठा का प्लेन आया उनके लिए, उनको वैकुंठा ले जाने के लिए, तो विष्णु दूत खड़े थे उनके पास। वो विष्णु दूतों को बोल रहे हैं कि वेट करो, मुझे अपनी डेली की जो रिचुअल्स हैं, डेली के जो ड्यूटीज हैं, लेट मी परफॉर्म दोज। उन्होंने अपनी मंगला आरती करी,
अपनी श्रृंगार आरती करी, अपनी चैंटिंग करी, अपने सभी से ब्लेसिंग्स ली, ऋषि मुनियों को प्रणाम किया, ये सब उन्होंने किया। राइट। तो एंड और देखो, किसको वेट करवा रहे हैं? विष्णु दूतों को। विष्णु दूत वहां पे वेट कर रहे हैं और वो ड्यूटीज कर रहे हैं अपनी। इजंट इट अमेजिंग? सो ये क्वालिटीज होती हैं, अपनी ड्यूटीज हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, जो कि हमारी ड्यूटीज हैं। राइट। तो दैट्स व्हाई ही टुक अनुमति फ्रॉम धृतराष्ट्र, और उसके बाद धर्म से अपना राज्य चलाया। हमें लगता है कि धर्म धर्म क्या है आज की डेट में, हाँ कैसे भी कमाओ, पैसा कमाना चाहिए हमें। पर अधर्म से कमाए हुए धन का कोई फायदा नहीं होता। हमें लगता है कि वो बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे उसके, हमें प्रॉस्पेरिटी होगी, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है जनरली। ठीक है। मैंने देखा है अपने पापा के फ्रेंड्स को जो रिश्वत लेते थे, और वो सब एक्सटर्नली लगता है दे आर वेरी रिच एंड ऑल, बट देयर फैमिली लाइफ गेट्स अफेक्टेड, देयर चिल्ड्रन गेट्स अफेक्टेड। तो वो दिखता नहीं है। बट इसीलिए अपनी ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्मा, और वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि धर्म से राज्य चलाने से उनको क्या क्या फायदा हुआ। ठीक है। तो अपनी ड्यूटीज को अकॉर्डिंग टू द धर्मा वी शुड डू। राइट। सो कमिंग बैक टू दिस अजात शत्रु टॉपिक, सबने वो स्टोरी सुनी होगी ना, साधु की और बिच्छू की। एक साधु नदी में स्नान कर रहा होता है, तो उसको एक बिच्छू दिखता है, वो डूब रहा होता है बिच्छू पानी में। तो वो साधु क्या करता है, उसको कंपैशन आता है ना, वन ऑफ द क्वालिटीज इज कंपैशन। तो वो क्या करता है, अपने हाथों में से ऐसे वो उठाता है उसको, और बाहर लेके आता है। तो जैसे पानी में, जब तक तो वो पानी में होता है तब तक तो ठीक है, जैसे ही वो बाहर आने लगता है तो वो पानी उसके हाथ में से धीरे धीरे चला जाता है, और वो बिच्छू उसकी स्किन को टच करता है। जैसे ही वो टच करता है वो उसको काट लेता है, और फिर उसके हाथ से वो गिर जाता है, फिर से पानी में गिर जाता है, वो फिर से उठाता है, फिर से वही होता है, फिर से उठाता है, वो फिर से काटता है। तो ऐसे करते करते तो जो बाहर लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये बिच्छू इसको बार बार काट रहा है और ये फिर भी वही करे जा रहा है। तो वो ब्राह्मण बोलता है कि ये एक बिच्छू होकर, एक एनिमल बिच्छू होकर, एक वो अपना नेचर नहीं छोड़ रहा है, तो मैं एक साधु, एक ब्राह्मण होके मैं अपनी नेचर कैसे छोड़ दूं? सो अपने दुश्मन को भी बचाना, अपने दुश्मन की बात, अपने दुश्मन से अनुमति ले रहे हैं ना, वो एक तरह से वो दुश्मन ही है, धृतराष्ट्र। Isn't it? सब कुछ धृतराष्ट्र की वजह से हुआ। अगर वो धृतराष्ट्र चाहता तो ये युद्ध ना होता, धृतराष्ट्र चाहता तो द्रौपदी का चीर हरण ना होता, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो ही वॉज द एनिमी। तो बट युधिष्ठिर महाराज सेड कि आई एम नॉट गोइंग टू बिकम द एनिमी ऑफ द पर्सन। हाँ ऐसे, एनिमी ऑफ द एनिमी, राइट, नहीं बनना चाहता। डोंट, ही वॉज नॉट कंसिडरिंग हिम एनिमी एनी मोर। ही सेड कि मैं मोड ऑफ गुडनेस में ही रहूंगा, मैं स्टेडी ही रहूंगा, विच इज अगेन वेरी वेरी रेयर क्वालिटी। राइट। तो सेम चीज चैतन्य महाप्रभु भी, एक स्टोरी है चैतन्य महाप्रभु की, आई डोंट नो, आपने शायद सुनी होगी, बट आई स्टिल से। तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी के दो डिसाइपल्स थे, ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी। तो जब माधवेंद्रपुरी का लास्ट टाइम था, तो उस टाइम पे ईश्वरपुरी उनको बहुत, उनकी सेवा कर रहे थे उनके लास्ट फ्यू मंथ्स में। सो बट रामचंद्रपुरी, जो अगेन उनके डिसाइपल थे, तो रामचंद्रपुरी ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मायावादी, मायावाद फिलोसफी। तो ही वाज टेलिंग टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर माधवेंद्रपुरी को, वो बोल रहे थे कि तुम क्या ये लास्ट टाइम पे कृष्णा कृष्णा कर रहे हो, ब्रह्मन रियलाइजेशन करो, वहां पर यू विल अटेन पीस, हाँ, एट द टाइम ऑफ डेथ, हाँ, व्हाई आर यू डूइंग दैट? तो he was he started giving Mayavad philosophy to whom? Madhavendra Puri. But Madhavendra Puri got so angry, he said ke I don't want to see your face, go away from here. सोचो, एक स्पिरिचुअल मास्टर ने आपको बोल दिया आई डोंट वांट टू सी योर फेस, which means he has rejected him.
राइट, तो उनके स्पिरिचुअल मास्टर ने उनको रिजेक्ट कर दिया. नाउ बिकॉज ऑफ दैट रिजेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस वैष्णव अपराध, व्हाट ही इज डूइंग, ही स्टार्टेड ब्लास्फेमिंग मोर डिवोटीज. और गंदा गंदा वो बोलने लग गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. क्या हुआ, वो और नीचे गिरता गया, गिरता गया. तो वो और वैष्णव को क्रिटिसाइज करता गया. इतना ज्यादा पहुंच गया कि वो चैतन्य महाप्रभु को क्रिटिसाइज करने लग गया. चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो रामचंद्र पुरी वहां पर आया और बोलने लग गया कि तुम बहुत खाते हो, यू ईट टू मच. चैतन्य महाप्रभु को बोल रहा है, यू आर ईटिंग टू मच. बट लुक एट चैतन्य महाप्रभु, ही डिड नॉट रिटेलिएट. यार, तुझे पता है तू है कौन? तेरे को तेरे स्पिरिचुअल मास्टर ने रिजेक्ट कर दिया है. और तुझे पता नहीं मैं भगवान हूँ. और दूसरी बात, तुझे तू खुद क्या है, तेरे को तेरे स्पिरिचुअल मास्टर ने रिजेक्ट किया हुआ है? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा. he actually took his word and he stopped eating. He started eating very very less. ऑस्टेरिटी करने लग गए. कैन यू इमेजिन? एक किसी ने उनको कुछ बोल दिया, he started implementing it. This is the quality of a Vaishnava. Remaining steady, not becoming the enemy of your enemy. Hmm? So no matter whatever the situation is, you have to be steady. अब अच्छी सिचुएशन थी युधिष्ठिर महाराज की, बट उस अच्छी सिचुएशन में वो ऐसा नहीं हुआ कि चलो ठीक है छोड़ो इस बुड्ढे को. नहीं, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो ही इज टेकिंग हिज अनुमति. ठीक है, उनकी अनुमति ली. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. Next किसकी ली उन्होंने? वासुदेव अनुमोदिता, confirmed by लॉर्ड श्री कृष्णा. वासुदेव इज लॉर्ड श्री कृष्णा. उसके बाद वो किससे अनुमति ले रहे हैं? कृष्णा से भी ले रहे हैं. विच इज फाइन, है ना? वो तो समझ में आती है हमें कि नहीं आती? कृष्णा से तो हम सभी लेते हैं. लेते हैं हम. आर वी फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा? हम सबको यहाँ पे 4 4 5 5 साल हो गए हैं करते हुए. एवरीवन कैन टेल देयर ओन, है ना, कि वो कितनी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पाते हैं. मैं कितनी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पाता हूँ? वी शुड आस्क दिस क्वेश्चन कि कृष्णा ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, क्या मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ? तो आप बोलोगे हमें तो कृष्णा मिले नहीं जी, हमें तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिली कृष्णा से. तो कृष्णा ने किससे इंस्ट्रक्शंस दी हैं हमें? किसके द्वारा इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं? उस टाइम पे तो चलो कृष्णा उनके साथ थे युधिष्ठिर महाराज के, बट हमें कृष्णा की इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिल रही हैं? एनीवन? प्रभुपाद जी से। हाँ, प्रभुपाद जी से. इन थ्रू व्हाट मीडियम? तो श्रीमद् भागवतम है श्रीमद् ना। भागवतम, करेक्ट. शास्त्रों से, राइट. तो 3 जगह से हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं: गुरु, साधु, शास्त्र. ठीक है. अब गुरु, गुरु कौन है? आपके स्पिरिचुअल मास्टर. साधु कौन है? जितने भी ये डिवोटीज हैं, जो सीनियर डिवोटीज हैं वो. और गुरु एंड साधु, दे रेफर टू व्हाट? शास्त्र. सो दीज ऑल थ्री आर इन सिंक. इनकी इंस्ट्रक्शंस में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा. तो वी शुड ऑलवेज सीक देयर गाइडेंस बिफोर डूइंग एनीथिंग. The problem is we don't take guidance because we think that we know what we are doing, right? अब जब मैंने भक्ति परीक्षा स्टार्ट करना था तो मैंने अपने गुरु महाराज को ईमेल डाला. आई टुक हिज परमिशन. आई टुक हिज परमिशन इवन बिफोर गोइंग टू अ यात्रा. कुछ भी अपनी लाइफ में करते हो, जस्ट टेक परमिशन. सोचो, वो तो धृतराष्ट्र की परमिशन ले रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अपने इस गुरु की. हमारे जहन में वो रहना चाहिए, है ना, कि वो गुरु हैं, उनसे परमिशन लेने की आदत होनी चाहिए, उनकी इंस्ट्रक्शन सुनने की और बाद में उनको फॉलो करने की हमें हिम्मत होनी चाहिए. और हमें पहले पूछना आना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस लेने की आदत होनी चाहिए हमें. बट हमें लगता है ठीक है, क्या है, ठीक है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, हो रहे, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, क्या फर्क पड़ता है? इजंट इट?
हमें हर सिचुएशन में वी शुड आस्क, ये सिचुएशन है मेरे साथ, व्हाट शुड आई डू, ये सिचुएशन है, व्हाट शुड आई डू। बट वी डोंट केयर इवन इफ वी कम टू नो। ठीक है ना, अब जैसे ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, जैसे माता जी ने बोला कि प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, 16 राउंड की अटेंटिव चैंटिंग और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। बट कितने साल होने के बावजूद आई नो लॉट ऑफ डिवोटीज जो कि वो फॉलो नहीं कर पा रहे। वो क्यों नहीं कर पा रहे फॉलो? व्हाई वी आर अनेबल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस? कृष्णा की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हुई थ्रू भगवत गीता, थ्रू ऑल द शास्त्रा, थ्रू गुरु, थ्रू साधु, व्हाई वी आर नॉट एबल टू फॉलो? Because of ignorance. बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, यस, बट इग्नोरेंस। We have too many anarthas in us covering, so it will take time to come out of it. Yes, from anarthas definitely it will take time, but who is stopping us to follow the instruction? वो तो हमने अपनी So फ्री। हाँ जी, हाँ our जी। own, सॉरी माता जी, दोबारा बोलना। our own mind. हाँ, उसमें अनर्था तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तब अनर्था जाएंगे। Hmm. हमारे अनर्था इसीलिए ही नहीं जा रहे हैं बिकॉज हम इंस्ट्रक्शन फॉलो ढंग से कर ही नहीं रहे हैं। Hmm. और हमारा माइंड, जैसे आपने बोला कि वो नहीं हमें करने दे रहा, हमारी फ्री विल, हम अपनी फ्री विल को गलत तरीके से एग्जीक्यूट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। राइट, और वो क्यों कर रहे हैं हम? Because हमारा टोटल सरेंडर नहीं है अभी। हम्म। सरेंडर जब हुई ना, इट्स अ चिकन एंड एग सिचुएशन। सरेंडर होगा ही नहीं जब तक हम इसको वैदिक साधना भक्ति बोलते हैं, राइट? रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब तक हम रूल्स एंड डिसाइपल वर्ड कहाँ से आया है? डिसाइपल बनने के लायक हम तब होंगे इफ वी आर डिसिप्लिन्ड। ये जो डिसाइपल वर्ड आया है ये डिसिप्लिन से आया है। तो जब डिसिप्लिन होगा ही नहीं तो डिसाइपल बन ही नहीं पाएंगे। और डिसाइपल नहीं बन पाएंगे तो आगे अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, वो सब चीजें आती जाएंगी। पॉइंट हियर इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू डू सो इज बिकॉज वी डोंट वैल्यू इट। हमें पता ही नहीं है इसकी वैल्यू क्या है। हमें लगता है ठीक है यार, क्या है, बोल रहे हैं कुछ 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, कुछ है, ठीक है कर लेंगे, बहुत टाइम है। हमें लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई लॉटरी, 1 करोड़ की लॉटरी की टिकट दूं मैं आपको, आप बोलोगे ठीक है यार, पता नहीं लगेगी नहीं लगेगी, ठीक है आप लेके रख लोगे, ठीक है चलो ओके। बट यही मैं अगर आपको 1 करोड़ का चेक दूं, आप फटाफट से पकड़ोगे उसको। अरे वाह, 1 करोड़ का चेक है ये तो, मेरे नाम का। राइट। तो हमें क्या लगता है, ये जो भक्ति कर रहे हैं हम, जो भी हम ये कर रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके, पता नहीं क्या होगा, होगा नहीं होगा। तो हम इसे लॉटरी समझ रहे हैं, पता नहीं यार मेरी लगेगी नहीं लगेगी। बट यही अगर चेक हो, अगर आपको पूरा विश्वास हो, श्रद्धा हो कि हाँ ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो मैं अगर करूंगा या ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूंगी तो आई विल रीच, गो आई कैन आई विल बी एबल टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। बट वो फेथ नहीं है हमें, हमें वो श्रद्धा नहीं है, फर्स्ट थिंग ही नहीं है हमें। थोड़ी सी है श्रद्धा, बट बहुत थोड़ी। और एज अ रिजल्ट हम रूल्स एंड रेगुलेशंस स्लिप कर जाते हैं, बोलते हैं ठीक है इट्स ओके। और कुछ लोग तो क्या करते हैं, रागानुगा भक्ति करने लग जाते हैं। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ भक्ति, वैधि साधना भक्ति एंड द नेक्स्ट स्टेज इज रागानुगा भक्ति। वैधि साधना इज वेयर यू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। इतने बजे उठना है, इतने बजे भोग लगाना है, ये करना है, नहाना है, नहा के बैठ के चैंटिंग करनी है, राइट, ऑल द डूज एंड डोंट्स। वेयर एज रागानुगा भक्ति इज भाव भक्ति। वो फिर नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो कई लोग बोलते हैं हम तो भाव में हैं, कृष्णा तो भाव ग्रही हैं जी, उनको आप कैसे भी कर लो, उनको आप लहसुन प्याज वाला खाना भी खिला दो वो खा लेंगे। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क, राइट? So you have to follow the rules and regulations. These are very important. You have to follow the instructions. तो उन्होंने राज्य ऐसे ही चलाना नहीं शुरू कर दिया है। उन्होंने अनुमति ली, उसके बाद कृष्णा की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली ही स्टार्टेड रूलिंग द एम्पायर, राइट? So that is again a very good lesson which we learn from Yudhishthir Maharaj कि even though he was a great Vaishnava, already उनमें सारी qualities थी,
बट उसके बाद भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को नहीं छोड़ा, कृष्णा के इंस्ट्रक्शंस को नहीं छोड़ा। वी कैनॉट डू दैट। ऑलराइट, एंड देन ही स्टार्टेड लीडिंग। अब उसमें नेक्स्ट प्रभुपाद क्या टॉपिक टच कर रहे हैं, लीडरशिप पे, कि आजकल के लीडर्स कैसे हैं, और युधिष्ठिर महाराज कैसे थे। युधिष्ठिर महाराज वॉज कॉल्ड अ राज ऋषि। राजा जनरली क्या होता है, क्षत्रिय, और ऋषि होता है ब्राह्मण। तो इन ओल्डन डेज देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ राज ऋषि, वेयर किंग्स वर ट्रेन्ड like Yudhishthir Maharaj, where they had both the Brahmanical as well as Kshatriya qualities, right? तो खाली क्षत्रिय नहीं होते थे उस टाइम पे, वो राज ऋषि होते थे। उनमें ब्राह्मणिकल, ये सारी जो ऊपर क्वालिटीज जो हमने डिस्कस कर रहे हैं हम इतने देर से, तो ये यही क्वालिटीज हैं ब्राह्मणिकल। ब्राह्मण क्वालिटीज होनी बहुत बहुत जरूरी हैं, स्पेशली द पीपल हु आर इन द लीडरशिप रोल। अभी हमारे, और लीडर को क्या करना होता है, लीडर हैज टू सर्व द मोस्ट rather than exploiting। आजकल के लीडर्स क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट, राइट। तो अगर आप इस्कॉन में भी देखो, तो इस्कॉन में क्या बोलते हैं, जो भक्ति वृक्षा टेल सर्वेंट लीडर। सर्वेंट आता है पहले, लीडर से पहले सर्वेंट आता है। भक्ति वृक्षा सेल सर्वेंट लीडर। तो लीडर हैज टू सर्व, सबको सर्व करना होता है उसको। यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल, राइट। अब जब युधिष्ठिर महाराज थे, उनके पास सब लोग आते थे अपनी प्रॉब्लम्स लेके, अपनी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स, अपनी मटेरियल प्रॉब्लम्स। ही वाज लाइक अ स्पिरिचुअल मास्टर। किंग, उस टाइम के किंग वर लाइक द दीक्षा गुरु, वर लाइक द स्पिरिचुअल मास्टर्स, बिकॉज दे हैव सो मच स्किल, ब्राह्मणिकल स्किल्स एज वेल, नॉट ओनली क्षत्रिय स्किल्स। आजकल के लीडर्स, नो ट्रेनिंग, डायरेक्टली बिकमिंग लीडर विदाउट द क्वालिफिकेशन। ऐसे लीडर्स जब बनेंगे, वो आगे क्या करेंगे, आगे भी वैसी ही प्रजा बनाएंगे वो, नहीं जैसी परंपरा वो चलती जाएगी। ठीक है ना। वो बोलते हैं ना, जैसे पॉलिटिशियंस हैं, अब पॉलिटिशियंस भी वो पूरी परंपरा कायम कर रहे हैं, जैसा आगे लेगेसी उनको दिखती है, जैसे करप्ट पॉलिटिशियन हैं वैसे ही वो आगे बन जाते हैं, आगे आगे वाली जनरेशन भी वैसी करप्ट बनती है। ठीक है ना, जैसे होता है ना कॉलेज में कि मेरी रैगिंग हुई है तो मैं आगे भी रैगिंग करूंगा। दिस इज हाउ इट इज। इतना इतना गंदा हो गया है, राइट। सो इसीलिए एटलीस्ट, if we are in if I talk about just ISKCON and from within our devotee culture, we should be very well trained, hmm, if we are taking the leadership roles, right? तो इट इज, प्रभुपाद ने परपुट में क्या लिखा है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। आजकल की गवर्नमेंट क्या है, बाय द पीपल तो है, बट ना वो ऑफ द पीपल है ना फॉर द पीपल है। ठीक है ना, गवर्नमेंट किस पे किस पे सरवाइव कर रही है, हमारे दिए हुए टैक्स पे। हाउ मच डू वी स्पेंड। अभी न्यू साउथ वेल्स में क्या किया, प्रीमियर ने बोल दिया कि पांचों दिन आओ ऑफिस। क्यों, क्योंकि वो उनकी सीबीडी नहीं चल रही है, और लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम सिटी में जाके ना हम कॉफी पियेंगे, ना हम लंच खाएंगे, हम घर से लंच लेके जाएंगे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन न्यू साउथ वेल्स। तो ऐसी गवर्नमेंट से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो बेटर है वी जस्ट फिनिश ऑफ आवर बिजनेस हियर एंड गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड एज सून एज पॉसिबल। नहीं तो हम यहीं इन्हीं चक्करों में फंसे रहेंगे। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या, इसमें प्रभुपाद परपुट में क्या बोल रहे हैं, लास्ट कोट है इसमें। What he's saying is, Maharaj Yudhishthir is the ideal monarch, and monarchy under the trained king like Maharaj Yudhishthir is by far the most superior form of government, superior to the modern republics of the people by the people. The mass of the people, especially in this age of Kali, are all born Shudras, basically low born, ill-trained, unfortunate, and badly associated. My God, इतने सारे उन्होंने एडजेक्टिव्स लगाए हैं आज हमारे जैसे लोगों के लिए। वी आर ऑल व्हाट, शूद्रास। हम सबको पता है ना। आजकल, पहले पुराने जमाने में क्या होता था,
ये राज्य कौन चलाता था? क्षत्रिय। किंग वॉज अ क्षत्रिय। एंड अगेन राज ऋषि, जैसे हमने डिस्कस किया, एंड ऑन टॉप ऑफ इट उनके पास एक पूरी मिनिस्ट्री होती थी। ऋषि हमेशा उनके साथ आसपास भी रहते थे, मिनिस्टर्स जो कि ब्राह्मण होते थे, जो कि हेड ऑफ द सोसाइटी हैं, जो दे यूज टू गाइड द किंग बेस्ड ऑन द शास्त्रास, कि आपको ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा डिसीजन लेना। दे वर द कंसल्टेंट्स ऑफ द किंग। और आज की डेट में कौन सा पॉलिटिशियन आपको लगता है ब्राह्मण है या क्षत्रिय है? आजकल के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी लीडरशिप रोल में हैं, दे आर आइदर शूद्रास और लेस देन वैश्य। शूद्रस। लेस और इवन लेस देन शूद्रास। या तो या ये सारा कौन चला रहा है? अंबानी जैसे लोग जो वैश्याज हैं, राइट? ये अंबानी, अदानी, दे आर इन्फ्लुएंसिंग ऑल दीज पॉलिटिशियंस एंड एवरीथिंग। तो वैश्याज या शूद्रास यही लोग आजकल के चला रहे हैं। और इल ट्रेंड, अनफॉर्चुनेट, बैडली एसोसिएटेड। एसोसिएशन भी गलत है उनकी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पुराने राजाओं की क्या एसोसिएशन होती थी? आसपास ऋषि मुनि होते थे। इनको कौन है गाइड करने वाला? गाइड करने वाले भी प्रभुपाद बोलते थे ना, ब्लाइंड लीडिंग अ ब्लाइंड। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो जब उनको ही नहीं पता अपना, दे देमसेल्व्स डोंट नो कि क्या करना है, तो वो आगे किसको क्या गाइड करेंगे? ऑलराइट। तो this is, I think I'll stop here. There was nothing much here. So I'll tell you the key takeaways for today, whatever we have discussed is: first is the Vaishnav qualities which we have seen. Today we discussed the Ajat Shatru quality, right? So what we should do, we should try to imbibe these Vaishnav qualities. There are 26 Vaishnav qualities which are, I think, mentioned in Bhagavad Gita, and they are mentioned in the uh, Nectar of Devotion as well. So what I think we should do, उसका प्रिंट आउट लेके हमें अपना किचन में या कहीं पर हमें लगा लेना चाहिए. I was telling Sir Magda the same thing, that we should put print out those 26 qualities of the Vaishnava and try pick one quality each, and try and for the entire day try to imbibe that quality. Try to, जैसे for example compassion, एक क्वालिटी उठाई compassion की, कि today I will be compassionate. आज का दिन मैं compassionate रहूंगा. ठीक है, तो ट्राई टू ऐसे ट्राई करो अपने आप में वो क्वालिटीज लाने की. नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वालिटीज, नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वालिटीज. एक महीना हो जाएगा, 26 दिन हो गए, उसके बाद अगेन कम बैक टू द फर्स्ट वन, राइट? एंड इफ यू डू इट विद योर पार्टनर, दैट वुड बी इजी एज वेल, ताकि आपका पार्टनर आपको पॉइंट आउट कर सके जब आप बोलो कि अच्छा, तुम्हारी तो ये क्वालिटी थी आज की, बट यू आर नॉट फॉलोइंग दैट. देयर शुड बी समवन टू शो यू द मिरर एज वेल. ठीक है, तो ट्राई टू एम्बाइब दीज क्वालिटीज. तो आज की जो क्वालिटी थी जो हमने डिस्कस की, वो अजात शत्रु के, नो वन, एनिमी का भी एनिमी नहीं बनना है, राइट? जो आज हमने युधिष्ठिर महाराज ने हमें सिखाया कि वो धृतराष्ट्र की अनुमति से राजा बन रहे हैं. हाँ, तो द नेक्स्ट पॉइंट विच वी डिस्कस्ड वाज इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा. ये हमें लगता है कि हम कृष्णा की इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, बट वी आर नॉट. एट ईच एंड एवरी स्टेप we should follow the instructions of Guru, Sadhu, Shastra. And we are so lucky, they are available to us very, very easily. Touchwood, जैसे मेरे गुरु महाराज, ही इज अवेलेबल जस्ट ऑन द क्लिक ऑफ एन ईमेल. मैं क्लिक करता हूँ, ईमेल करता हूँ, नेक्स्ट डे उनका रिप्लाई आ जाता है. एंड मोस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर्स इन इस्कॉन आर लाइक दैट. But you should not, I mean, disturb them for each and every small thing. But still, we have a lot of other sadhus as well, and of course, shastras are also there. हमें से वेदा बेस है, भगवत गीता है. Everything is available to us, and still, if we are not making use of it, then it is of no use. हमारे भक्ति वृक्षा में आ रहे थे एक लेडी, तो उन्होंने बोला कि they were following some other पंथ, क्या है उनका नाम, राधा राधा स्वामी. So she was saying कि we don't know.
हमें पता ही नहीं है कि गुरु का एक्सेस ही नहीं है। वो बोलते हैं कि चिट्ठी डालो गुरु को, हाथ से लिख के। वो चिट्ठी डालोगे गुरु तक पहुंचेगी। ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो तुम, वहां से तुम चिट्ठी डालोगे, वहां पे पता नहीं कौन बीच में आके उस चिट्ठी का जवाब दे रहा है, कुछ नहीं पता ना क्या हो रहा है। सो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास इतना इतना एक्सेसिबल हैं चीजें। इतने सारे लेक्चर्स चलते रहते हैं, रोज भागवतम सेशन होता है, इधर सेशन होता है, उधर सेशन होता है, कितने लाइव जूम सेशंस होते हैं। ये गौरांग दर्शन प्रभु के आ जाते हैं कई बार। सो वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू आस्क क्वेश्चन एंड टू मीट महाराज। अभी जैसे वेद व्यास प्रिय महाराज आ रहे हैं, उनसे वन टू वन मीटिंग कर सकते हैं हम एंड आस्क ऑल द पर्सनल क्वेश्चन। सो we should make best use of them, and then once we get those instructions, we should try to imbibe them. We should try to imbibe them. We should try to follow those instructions. पहले तो इंस्ट्रक्शन लेने की आदत डालनी चाहिए, पहले तो याद होना चाहिए। क्योंकि वी आर सो इंडिपेंडेंट दीज डेज, हमें इंडिपेंडेंट बनना सिखाया गया है कि मैं क्यों पूछूं किसी से भाई। आई एम आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन, व्हाई शुड आई आस्क एनीवन। पहले तो हमें ये एडमिट करना आना चाहिए कि नहीं, मुझे सब कुछ नहीं पता है। ठीक है, आई नीड टू आस्क समवन हायर देन मी, especially in the spiritual matters, right? And then once we get there, then we should try to follow that. All right, so the last point which we discussed is that becoming a leader without training, ill trained, not no training, जो प्रभुपाद ने लिखा, राइट? कि जैसे हम बिना ट्रेनिंग के लीडर बनेंगे, तो हम वैसे ही आगे भी लीडर्स वैसे ही बनाएंगे, वैसे ही अनर्थ हम आगे भी बांटेंगे। जितने अनर्थ हम में हैं, ऐसे लीडर बन जाएंगे, तो आगे जो जो हम डिवोटी बनाएंगे, उनमें भी हम वही परंपरा चलेगी उनमें भी। जैसे पॉलिटिशियंस में चल रही है। ऑलराइट, तो विल स्टॉप हियर, विल सी इफ देयर आर एनी करेक्शंस, कमेंट्स। Prabhu, I've got a question. हाँ जी। Prabhu, I was thinking, it is very easy to say, हम लोगों के लिए, like, especially for me, कि we should follow the instructions and stuff like that, है ना? लेकिन how do we not filter those instructions as well? Like, instructions are always there. तो हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि हमारे पास फिल्टर्स इतने सारे हैं. How do हाँ we make sure कि हमारे ये filters, we are first of all aware of it, and second of all, we can actually are doing something to get rid of those filter. Uska kya, what is the, like, if a layman person ask us, what can we tell them, what should we do? जी, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट आंसर इसका, बट आई थिंक व्हाट वी कैन टेल देम इज, जैसे आई थिंक वी वर डिस्कसिंग द अदर डे, राइट, के वी कैन डाइल्यूट इट अ लिटिल बिट अगर वो इंस्ट्रक्शन हमें टू हैवी लग रही है हमारे लिए, बट वी हम्म. शुड नॉट कॉन्कॉक्ट इट। तो एटलीस्ट जैसे अब फॉर एग्जांपल, अगर 16 माला नहीं हो रही है हमसे, इट इज ओके टू डू 8 राउंड्स, राइट, और 10 राउंड्स, और वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। बट वी शुड नॉट से के वी शुड नॉट ट्राई टू कॉन्कॉक्ट इट बाय सेइंग के भगवान का नाम तो मैं हर समय जपता रहता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, हम्म. 16 से भी ज्यादा हो जाती है मेरी तो। So that is हम्म. concoction. So try to हम्म. be true to yourself and हम्म. see the okay कि इतना हो रहा है मेरे से अभी because of my circumstances or whatever it is. But one day I should know the standard, highest standard. But I don't know I हम्म. answered your question right or not, Prabhu. नहीं नहीं, ठीक है. आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है प्रभु कि हम लोग समटाइम्स आई थिंक व्हाट मिसेस द बीट, द पॉइंट इज कि हमारे जो, this is just for me, Prabhu, है ना? I'm just Mm-hmm. talking about me. Sometimes what I do is I look at people on only one level. So when I'm giving instructions, I, as a person, sometimes I don't know what is the level of that person, है ना? तो क्या होता है, मेरे पास भी एक वो आ जाता है कि I give them instruction, like, we try to give them the highest instruction. But the problem is you give them the highest instruction and people just run away. Like, some people will run away. So, as a preacher, it gets sometimes really hard to find that balance of,
पहले तो पता करो वो लोग कौन से लेवल पे हैं, उनको कौन से लेवल का है। शुड वी गिव देम अ ज्ञान ऑफ माधुर्य रस, और वी शुड एक्चुअली टेल देम टू जस्ट वरी अबाउट चैंट चैंट एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स यू नो और फिर हम्म। मेरे को लगता है कि अवेयरनेस भी नहीं है, ना मेरे में अवेयरनेस है उनको लेके, ना ही उनको अवेयरनेस है खुद को लेके, है ना। तो वो आ, कैसे हाँ, वो उसका मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसमें प्रभु जो मैंने अपने इसमें किया ना, अब आपने भी बोला राइट कि फॉर अभी लेटेस्ट जो हम मंगला आरती गए हैं, अभी मेरे है। भक्ति हाँ वृक्षा को हाँ तो भी सिर्फ 8 हफ्ते हुए हैं। हाँ तो मैं सोच रहा था मैं बोलूँ ना बोलूँ, राहुल प्रभु भी बोल रहे थे कि यार मत बोलो, इट्स टू अर्ली। मैंने हाँ। said, इट्स ओके, एटलीस्ट आई ट्राई। तो हम्म मैंने बोला कि चलोगे? तो हम्म। 10-11 फैमिलीज आई हैं प्रभु उस दिन भक्ति वृक्षा से। मेरी टोटल वाह। 15 फैमिलीज हैं, 15 में से 11 फैमिलीज आई हैं, और उससे पिछले हफ्ते मैं उनको 12:30 बजे संडे लेके आया हूँ। फिर भी वो आ गए 4 बजे अगले अगले भक्ति वृक्षा में। तो आई एम नॉट वाह सेइंग, आई एम सेइंग वाह। कि ठीक है ना, हाँ। बट आई जस्ट ट्राइड। अगर मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा ही नहीं, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, मैं मेरे को याद है मैं पार्थ सारथी प्रभु के भक्ति वृक्षा में था, और मेरे को इट टुक आई थिंक अ ईयर टू गो टू मंगला आरती। और पार्थ सारथी प्रभु ने भी मुझे मुझे बोला ऐसे डरते डरते, हाँ 4:30 4:45 भी आ जाना, 5 बजे भी आ जाना। और मैं पहुंचा ही 5 बजे पहले दिन में, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस बड़े लाइट उसमें दी। कि मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि मुझे 4:15 4:20 पे यू शुड बी देयर। हम्म जो मुझे इंस्ट्रक्शन मिली थी, हाँ 5 बजे भी आ जाना, बिकॉज एज यू सेड कि बंदा अफ्रेड होता है ना कि पता नहीं आएगा नहीं आएगा, वो भाग ही ना जाए हम्म वो मंदिर का नाम हम्म सुन के। बट हम्म आई थिंक वी शुड जस्ट से, बट उसके बाद जो भी एक्सक्यूज सामने से आता है, वी शुड जस्ट एक्सेप्ट इट वेरी ग्लैडली कि यस प्रभु वेरी गुड, वट एवर इट इज वेरी गुड। अभी एक हम्म प्रभु आए उन्होंने कहा कि सिर्फ मंगला के लिए आए, ही परफेक्ट है ना, वो मंगला पूरे 4:20 पे आए, सबसे आगे खड़े हुए, सब कुछ बड़ा अच्छा उन्होंने किया। उसके बाद वो जाने लगे। मैंने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो? कहते प्रभु मैं घर जा रहा हूँ। पहले तो मैंने अंदर से होता है ना कि यार क्यों जा रहा अभी तो हाँ मैंने बोला नहीं उसने, पर मेरे भाव समझ लिए। कहते प्रभु वाइफ ने जिम जाना है 6:30 बजे। मैंने कहा बहुत बढ़िया प्रभु, गुड, गो फॉर इट। मतलब अंदर से तो मैं बोल रहा था क्या मतलब, संडे को 6:30 बजे जिम जाना है तो तू मंगला मतलब ये बीच में प्रोग्राम छोड़ के जा रहा, बट मैंने बोला कि नहीं प्रभु वेरी हाँ गुड। नहीं सही है। तो हाँ हाँ। एक बार आई थिंक वी शुड गिव द इंस्ट्रक्शन, उसके बाद अगर बंदा जैसे भी वो रेसिप्रोकेट कर रहा है, वी शुड जस्ट एक्सेप्ट इट एज इट इज। हम्म। We should not push, but we should not be, I think, afraid of giving the highest instruction. That's my take, Prabhu. At आई least थिंक यू once राइट। हाँ हाँ politely. Hmm. हाँ। हम लोग वी कैन जस्ट ट्राई एंड वी कैन जस्ट गिव देम what we think is right for them at that moment, and then obviously we should not think that we are the doer anyway. Exactly. Srila हमें Prabhupada ने भी उनको highest instruction नहीं दिया था, but he was very very compassionate as well. So he gave highest instruction, but at the same time he took care of the people who couldn't even do the lowest of the lowest. exactly exactly अब we नहीं ठीक है, I and got it. sometimes we judge ना, हमें पता ही हम्म नहीं होता। अब वो जो मैं प्रभु की बात बता रहा हूँ, वो भक्ति वृक्षा में टोटल आए होंगे, जैसे 8-10 क्लासेस हुई हैं, तो वो दो दो या 3 बार आए होंगे। उनको हम्म। बुलाता रहता हूँ आ जाओ, वो नहीं आ रहे, बट मंगला में आ गए, और उससे पिछले संडे वो 12:30 बजे भी आए हैं। हम्म तो यू कैनॉट जज कि कौन किसकी क्या प्रोपेंसिटी है, एंड अगेन बेस्ड ऑन देयर प्रोपेंसिटी एज वेल प्रभु, कि हम्म अगर हमें हमें इतना थोड़ा पता चल जाता है, जैसे आपने अवेयरनेस का बोला कि हमें भी अवेयरनेस नहीं है कि वो कहाँ होंगे, तो बट समटाइम्स इफ पीपल आर इन मोड ऑफ गुडनेस यू सी दैट, तो जो हम्म मोड ऑफ गुडनेस में है, इट इज वेरी इजी टू कॉल देम टू मंगला, बट दोज हु आर इन हम्म पैशन दे विल बी रेडी फॉर डूइंग द सर्विसेज, जहाँ जाना है वो fair enough. करना है, एडमिन सर्विसेज एंड ऑल। तो हम्म मेरे हैं 2-3 फैमिलीज हु आर इन मोड ऑफ पैशन राइट, सो उनको मैं उन वो बर्तन भी मांजेंगे, उसके बाद वो डिश वॉशर, वो क्लीनिंग, वो सब कुछ वो करते हैं, बट हम्म दे डिडंट कम टू मंगला, राइट, बट हम्म दैट्स देयर ओन जर्नी, राइट, that's सो fine, yeah. वी हाँ कैनॉट ठीक है। जज। that makes sense, bro. Thank you. ऑलराइट, एनी अदर? इट्स ओके, देन विल स्टॉप हियर। ग्रंथ श्रीमद् अच्छा, भागवतम। हरे हाँ कृष्णा। जी, हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। आप लास्ट में ये मेंशन कर रहे थे ना कि हमें एज अ लीडर बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तो विच इज़ वेरी ट्रू। बट आप जो कह रहे थे कि
अदरवाइज जो कि हमारे अंदर अनर्थ है वो हम दूसरों में भी लाइक अ पॉलिटिशियन वी विल स्प्रेड। तो प्रभु इन दैट सेंस फिर हम, क्योंकि अनर्था तो है वो, लाइक इफ देन हाउ हाउ वुड वी विल कंट्रीब्यूट इन द प्रीचिंग मिशन, एंड हाउ वुड वी think ourselves as a like future leader, or step in this preaching mission. करेक्ट तो because करेक्ट। anartha would always be there, and मेरे अंदर तो बहुत है प्रभु, तो नहीं, सब सभी कुछ के अंदर ही है माता जी। ये जब मैं भक्ति वृक्षा, विजेश प्रभु कैन करेक्ट मी, जब मैं भक्ति वृक्षा स्टार्ट करने से पहले मेरे को ये बहुत था कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये, क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि मेरे में तो बहुत अनर्था है। तो एंड मैंने ये लाइन कहीं पर सुनी थी कि यू, अगर आप में अनर्था है तो जो तुम में है, और अब सुनी क्या थी ये, मैं अभी भी माधव नंदा प्रभु ने भी ये बोला मुझे, कहते तुम सामने वाले को उतना ही भक्त बना सकते हो जितने भक्त तुम हो। भक्ति इज कंटेजियस, राइट। तो अगर तुम्हें खुद में अनर्थ भरे हुए हैं, तुम आगे भी वैसी प्रजा ही बनाओगे, राइट। तो मैंने अर्जुन सखा प्रभु से ये पूछा था, मैंने कहा प्रभु, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ही चैंटेड फॉर 10 years, देन ही एंटर्ड इनटू दैट एरिना, राइट, ऑफ प्रीचिंग। श्रीला प्रभुपाद ऑल्सो, ही कितनी देर वो वृंदावन में रहे, ही चैंटेड इन राधा दामोदर टेम्पल, एंड देन ही वेंट टू अमेरिका। सो अपनी साधना पहले, आई थिंक साधना स्ट्रॉन्ग करके देन आइडियली वी शुड टेक दैट रोल। बट अगेन कमिंग टू योर क्वेश्चन, फिर तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो ये मैंने सेम क्वेश्चन अर्जुन सखा प्रभु से पूछा था कि प्रभु हमारी साधना तो इतनी स्ट्रांग है नहीं, हम उस लेवल पे है नहीं। तो अर्जुन सखा प्रभु ने आंसर दिया था कि यू डोंट हैव टू एस्टेब्लिश दो सिद्धांत, जो सिद्धांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या प्रभुपाद ने एस्टेब्लिश किए हैं, आपको उस लेवल पे सिद्धांत एस्टेब्लिश नहीं करना, आपको सिर्फ उनकी उनकी दी हुई इंस्ट्रक्शन को एज इट इज पास करना है। तो इट इज नॉट अ वेरी बिग इम्पेडिमेंट, बट स्टिल हैविंग सेड दैट, whenever we are doing it, पहले बोलते हैं ना, अपने मास्क लगाएं फिर दूसरे के मास्क लगाएं। तो जब भी वी आर एंटरिंग इनटू दिस, नहीं तो हम क्या होगा, एसोसिएशन देने की बजाय एसोसिएशन लेने लग जाएंगे। तो दैट्स माय टेक, मे बी विष्णु प्रेषर प्रभु कैन करेक्ट मी और ऐड मोर टू इट। नहीं नहीं प्रभु, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई रिमेम्बर हमारे भक्ति शास्त्री के कोर्स में जो मैंने पहला मॉड्यूल करा था उनके साथ, जगन्नाथ राम प्रभु के साथ, तो उसमें भी जगन्नाथ रामू उसमें बोल रहे थे सब लोगों को कि भाई तुम लोग सब लोग, एवरीबडी शुड स्टार्ट प्रीचिंग। तो उनका एक, उनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उन्होंने उनको बोला देखो मैं नहीं प्रीच कर सकता, आई वांट टू गेट रिड ऑफ माय सम ऑफ द इश्यूज दैट आई एम हैविंग, और आई वांट टू गेट टू अ सर्टेन स्टेज, देन आई विल डू प्रीचिंग। तो जगन्नाथ राम प्रभु ने उनको बोला कि look, if you have full faith in Prabhupada, and if you have full faith in the instruction of Prabhupada, and if you're struggling in your sadhana, है ना, साधना आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद सम ऑफ द अनर्थास, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली गो एंड स्टार्ट प्रीचिंग, बट प्रीच ऑथेंटिकली। लाइक व्हेन यू से लुक, आई वांट पीपल टू डू दिस, आई एम ट्राइंग टू डू द सेम थिंग, ऐसे नहीं बोलना कि आई हैव परफेक्टेड इट, आई एम डूइंग इट, बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ इस भरोसे रह जाएंगे कि लुक आई वांट टू बी लाइक गंगेश्वर प्रभु, जितनी नॉलेज हो जाएगी तब जाके मैं प्रीच करूंगा, देन वी विल नेवर बी एबल टू प्रीच। और अगर हमें लगेगा कि यार मेरे ना अनर्थास चले जाएंगे तभी मैं प्रीच करूंगा, तो हम लोग के अनर्थास तो जाएंगे ही नहीं, इवन भाव प्लेटफॉर्म तक अनर्थास रहते हैं थोड़े बहुत, है ना। तो उसका इसलिए कहते हैं प्रीचिंग में यू शुड गेट इनटू द प्रीचिंग एज लॉन्ग एज यू आर कन्विंस्ड, आपका कन्विक्शन है और आपको पता है, और आप वो जो एटलीस्ट जो बेसिक प्रिंसिपल है यू फॉलोइंग दैट, एंड यू अंडरस्टैंड द मोड ऑफ प्रभुपाद, देन यू कैन डेफिनेटली प्रीच। अनर्थात जो धीरे धीरे हमारी खुद की गलतियां हैं, जैसे कुछ लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं, दैट इज नॉट ए इम्पेडिमेंट फॉर प्रीचिंग, यू कैन स्टिल preach. Not everyone can get up early in the morning and really early, that's okay, no problem, as long as we understand कि यार हमारी what is it that, like some people preach like Sunita Mataji, singing and all those sort of things, they do late programs, they don't get up early morning, that's okay, क्योंकि that's a seva that, like some people like kirtan, some people like cooking, some people like in the temple they like to organize festivals, some people are
all over the whatever your propensities are, based on that you can preach. But when you're sitting on a Vyasasana, there are few things that you need to do. One is you need to understand Prabhupada's mood, with what mood he is doing. Otherwise, what we will do is we will start pointing fingers at people. Hey, you're rascal, you're this, you're that. अगर हमें प्रभुपाद का मूड नहीं पता है तो हम लोग we can single everyone out. हम लोग अनियन गार्लिक से ऊपर नहीं निकल पाएंगे कि तू अनियन गार्लिक खाता है तो डोंट कम टू द भक्ति रक्षा, दैट काइंड ऑफ स्टफ. सो वी नीड टू बी कंपैशनेट, वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रभुपाद मोड. But if we are very convinced with this process and we are ready to literally do anything and everything to progress in our bhakti, that means we are ready to preach. And when you're preaching, you will learn a lot of different things: how to answer questions, how to do things, how to discuss with people, how to give people love, and how to not judge and still understand, and how to be very क्या बोलते हैं उसको confidential with people, because a lot of people will come and tell you their deepest issues. So if you can be like that, then you're actually ready. So don't wait कि यार मैं ऐसा बन जाऊंगा उसके बाद ही मैं preach करूंगा. But at the same time you need to have basic, as Prabhu said, अगर आप खुद ही अगर आप खुद ही 4 regulative principle follow नहीं कर पा रहे हो, then you will never be able to preach that to anyone. You need to walk that path first, क्योंकि लोग आपकी बातों पे ज्यादा नहीं जाएंगे, आपके कैरेक्टर पे ज्यादा. दे विल गेट इन्फ्लुएंस थ्रू योर कैरेक्टर एंड योर बिहेवियर रादर देन योर वर्बल थिंग, है ना. होप दैट मेक्स सेंस. इट्स टू लॉन्ग ऑफ एन आंसर, बट दैट्स व्हाट आई थिंक. बट Thank you, Prabhu. Thank you, Nishan Prabhu, and thank you, that Vishnu was, Prabhu. yeah, Okay, Naam Naam Singh. Singh, Naam Singh, bro. Thank you, bro. That was really good. That was It a good was discussion. amazing realization, Prabhu. I think I could sense that it was really coming from your heart, straight from your heart, and it was Hmm. really making a lot of sense. Thank you, Prabhu. Thank you, Madan. Thank you, Naam Singh, bro. Brilliant, awesome. All right, then we'll stop here. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील Yes. प्रभुपाद की जय. Jai. Thank you, bro. Thank हरे you. Hare कृष्णा, Krishna, bro. Hare हरे Krishna. कृष्णा.